Hello, my fabulous viewers, and welcome to this session of tarot reading. Now, this is reading for the sign of Capricorn from the 1st to 15th of November. And please remember, this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate हो तो उन्हें ही रखना है. And you can also check your chart. You can check your sun, moon, rising, and Venus. And I've done this a little differently this time. So this is actually love messages. These are love messages for the sign of Capricorn for the first 15 days of November. So let's start. So the first message of love for the sign of Capricorn is support. You've got this card, support. Now support says, I am always with you in your difficult time. This is what it says, support. So somebody needs your support and somebody is ready to support as well. Next card we have got is regret. रिग्रेट आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस. तो आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई होगी जिसकी वजह से रिग्रेट हुआ होगा. सो द पर्सन इज़ रेडी टू मतलब दे आर रेडी टू से सॉरी फॉर द वर्ड्स एंड एक्शंस. वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स. देन थर्ड वी हैव क्वेश्चन. आई लव यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट. So there's a question, I loved you so much, why did you break my heart? This is someone is asking this. This could be either you, Capri, or your partner. Then we have impatience. Life is too short to want to wait, trying to meet you. Now somebody here really wants to meet you क्योंकि वो रो रहे हैं and they want to meet you. So they feel that they are going to die if they don't meet you. Very, very emotional. Then we have wish. My dad starts with your smile. Sorry, my day starts with your smile. Be mine only. So this is a wish. Somebody is saying that my day starts with your smile. So you should be my only. Next we come to holding on. I need some time to think about you. I need some time to think about you. This is what it is saying. Okay, now let us see what your tarot cards are saying. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and one more card I'll pick. 7, fortunate. I am the luckiest person. Thank you for coming in my life. So very good cards. Someone is saying that thanking the person. मतलब आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है और वो आप लोग एक दूसरे को थैंक कर रहे हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर इन टैरो. टैरो में फर्स्ट कार्ड है this is a जेमिनाई कार्ड, मैजिशियन. तो कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आपको बहुत अच्छे से जानता है कि हाउ टू मेक यू हैप्पी. सो आइदर दिस कुड बी यू और इवन क्रॉस वॉचर्स देख सकते हैं इसको. तो समबडी हैज़, और ये पर्सन बहुत ही स्मार्ट है. ये पर्सन बहुत ही ये इसको अपनी चीज़ें कैसे सक्सेसफुल बनानी है. दिस पर्सन वॉज वेरी वेल. Magician we have got. This seems to be a Gemini energy, so you could be dealing with a Gemini. Next we come to the King of Pentacles in the reverse. तो आप completely इस person पे rely नहीं कर सकते. There could be some financial problems as well, stability problems as well. So be sure whether you are आप मतलब ये पैसे से concerned है तो financially you are stable or not. It seems that you may not be financially stable. You could be dealing with a Taurus or a Virgo. Then we have got the Page of Swords in the reverse. So ये कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो यंग हो सकता है, लेकिन ये पर्सन मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पाई करता है, बट दिस पर्सन मे नॉट स्पीक द ट्रूथ. सो यू हैव टू बी श्योर. इसकी पेज की एनर्जी हो सकती है, बट हु इज़ दिस पर्सन, यू हैव टू बी श्योर कि व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा झूठ भी बोल सकता है और ये बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकता है. तो यू हैव टू बी केयरफुल. नेक्स्ट वी कम टू 2 of Cups. 2 of Cups इज़ ऑल्सो इन द रिवर्स. तो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो है वो ब्रेकअप हो गया है, बिकॉज दिस पिक्चर शुड बी लाइक दिस. तो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है. दैट इज़ वाई somebody is manipulating you into the relationship. So be sure. नेक्स्ट वी हैव गॉट द मून. तो आप ज़िंदगी में कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, आपको कहाँ जाना है, आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं है. आप में से दोनों में से कोई तो ऐसा है जो क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है कि वो आखिर सिस्टम में कहाँ जाना चाहते हैं. फुल मून इज़ कमिंग, सो व्हेन द फुल मून इज़ देयर देन यू कैन ईजिली मे बी देन दिस थिंग्स बिकम क्लियर. और आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अनसर्टेनिटी, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डुअलिटी. हो सकता है कि आपके पर्सन के 2 चेहरे हों और वो आपको नहीं बताना चाहते हैं कि मतलब
क्लैरिटी नहीं देना चाहते हैं आपको मे बी कि वो क्या चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स। तो आप किसी न किसी बात को सोचे जा रहे हैं बट इन द रिवर्स तो आप काफ़ी ज़्यादा बेचैन हैं। आप कोई तो बात है जो कि जानना चाहते हैं, लेकिन इवन वाइल स्लीपिंग यू आर थिंकिंग ऑफ दैट ओनली। ओके, सो लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 एंड वन मोर कार्ड आई नीड। ओके, वी हैव गॉट द 10 ऑफ कप्स। सो माइट बी कि इमोशनल फुलफिलमेंट आप लोग एक दूसरे से चाहते हैं। यू माइट बी मैरिड ऑल्सो, यू हैव अ फैमिली एज वेल। So 10 of cups is complete emotional fulfillment. This is very nice. You can see the rainbow here. So all in all it seems that जो भी आपके जो लव कार्ड्स आए हैं वो लव कार्ड्स के अकॉर्डिंग यही दिख रहा है कि भाई you are somebody's wish or somebody else is your wish. होल्डिंग ऑन, होल्ड करके बैठे हुए हैं। आप लोगों में शायद ब्रेकअप हो गया है, इम्पेशेंट है, पेशेंटली आपका वेट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो किसी ने किसी का हार्ट ब्रेका है बिकॉज टू ऑफ कप्स, किसी ने किसी का हार्ट ब्रेक किया है बिकॉज वी हैड 2 ऑफ कप्स इन द रिवर्स। तो किसी को हर्ट हुआ है, किसी ने किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है। एंड देन वी हैव द रिग्रेट, समबडी इज़ रिग्रेटिंग, समबडी इज़ डेफिनेटली रिग्रेटिंग कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। देन यू हैव सपोर्ट की ज़रूरत है एक दूसरे को। एंड देन वी हैव फॉर्चुनेट। तो अगर ये सब बातें पूरी हो जाएंगी सो यू विल हैव दिस 10 ऑफ कप्स एंड देन यू विल फील फॉर्चुनेट कि हमारा सारा इमोशनल फुलफिलमेंट हो गया है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। सो यू हैव टू बी श्योर एंड यू हैव टू सी दैट जिसने आपका दिल ब्रेक किया है, किसी ने ब्रेक किया है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन मूव फॉरवर्ड, बट प्लीज़ बी क्लियर ऑन द पिक्चर दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड। So this is what I have for you. I hope you liked it. See you next time.